ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮਦ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਵੈਰੀਬਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ 45 ਬੋਰ ਵਿਕਟਰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਰੀਬਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਵਿਕਟਰ ਪਿਸਟਲ ACP ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀਬਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੌਕ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੌਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੌਕ ਦਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੌਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੌਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਰੀਬਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੌਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੌਕ ਦਾ ਕਰੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਸਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਆਊਟ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਕਟਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਲੋਡਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੈਦਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਰੀਬਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 500 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 15 ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ 15 ਸ਼ਾਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਸਟੈਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ 15 ਸ਼ਾਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਪਨ ਜੋ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪॉकेट्स वगैरह मिलती हैं बॉक्सिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ अपना एक्स्ट्रा कोई भी सामान वगैरह जिवें लाइसेंस वगैरह हो गया उन्होंने आप एक्स्ट्रा नाल कैरी कर सकते। ये जो पिस्टल है ये बेसिकली 32 बोर में एक ACP पिस्टल है। इसका मतलब है कि जो हमें इसका अंदर चैम्बर दिया गया है वो एक ACP चैम्बर है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस पिस्टल। तो ये पिस्टल है ये एक स्ट्राइकर फायर पिस्टल है 32 बोर में एक स्ट्राइकर फायर पिस्टल, और हमें इसकी जो एमिंग साइट्स दी गई हैं वो वाइट डॉटेड साइट्स दी गई हैं जो कि हमें एम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। और इस पिस्टल की जो मैगज़ीन है वो एक डबल स्टैक मैगज़ीन है जो कि 15 राउंड्स की कैपेसिटी के साथ की जी बॉडी है वो एक पॉलीमर बॉडी है। तो अब मैं इंडियन कंज्यूमर्स में एक गल दसना चाहूँगा कि उन्होंने कई बार लगता है कि पॉलीमर बॉडी होने की वजह नाल जो ये पिस्टल की क्वालिटी है या जो बॉडी फ्रेम है वो काफ़ी लो क्वालिटी या डिग्रेडेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो पॉलीमर बॉडी है या पॉलीमर फ्रेम है ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक के साथ बनाया जाता है जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट बॉडी फ्रेम है हैंडगन्स के लिए। स्पेशल आर्म फोर्सेस में इसी बॉडी फ्रेम को रेफ़र किया जाता है हैंडगन्स के लिए। और ये पॉलीमर जो ये पॉलीमर बॉडी फ्रेम है
ये बहुत ही अच्छा वेल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और ये जो बॉडी फ्रेम है बहुत ही टाइम तक लास्ट करता है, यानी कि इट्स अ वेल लास्टिंग बॉडी फ्रेम फॉर वेपन्स फॉर डिकेड्स। कंट्रीज़ में जितनी भी वेपन्स की कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं वो सभी पॉलीमर बॉडी फ्रेम पे शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि एक तो ये एक काफ़ी लाइट वेट बॉडी फ्रेम है और ये एक वेपन की जो लुक है उसे काफ़ी एडवांस करता है, उसे काफ़ी प्रीमियम लुक देता है वेपन को। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो बॉडी फ्रेम है ये एक लॉन्ग लास्टिंग बॉडी फ्रेम है और सबसे बेस्ट क्वालिटी के समय आता है, इसलिए काफ़ी जो अदर कंट्रीज़ की वेपन की कंपनीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वो सभी पॉलीमर बॉडी फ्रेम पे ही ज़्यादातर शिफ्ट हो रही है। तो ये जो पिस्टल है इसकी जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड के ऊपर जो ये हमें कट्स दिए गए हैं ये इस पिस्टल के लुक को और भी ग्रेसफुल करते हैं, लेकिन इन कट्स का एक मेन पर्पस और भी है। वो पर्पस ये है कि ये जो कट्स हैं स्लाइड के ऊपर जो हमें दिए गए हैं तो ये कट स्लाइड के वेट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पिस्टल जो है स्मूथली वर्क कर सके। तो इसका मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कट्स दिए गए हैं ये पिस्टल के स्लाइड की वेट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो पिस्टल का जो ब्लो बैक है वो इजीली ऑपरेट हो सकता है। जो अगर इसका ब्लो बैक इजीली होगा तो ये स्मूथली वर्क करेगा। इसका मतलब ये है कि कट्स की वजह से जो पिस्टल का ब्लो बैक कम होता है, इसकी वजह से जो पिस्टल है वो स्मूथली वर्क करता है। और एक और बात ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ये पिस्टल ग्लॉक की कॉपी है, तो इसमें जो भी सेफ्टी फीचर्स होंगे जैसे ग्लॉक में आते हैं वैसे ही हमें दिए गए हैं। तो इसका जो मेन सेफ्टी फीचर है वो हमें इसके ट्रिगर पर दिया गया है, और एक सेफ्टी फीचर जो सेफ्टी जो इस चेम्बर के ऊपर एक शटर है वो इसके इनबिल्ट आता है। तो फर्स्ट सेफ्टी फीचर ये है कि इसका जो ट्रिगर है, जैसे कि हमने पिस्टल लोड किया था वैसे मैगजीन एम्प्टी है, तो सेफ्टी फीचर ये है कि अगर पिस्टल लोडेड है, जैसे कि अभी हमने इसे लोड किया, तो अभी जो इसका जो ट्रिगर है इसके ऊपर इसका सेफ्टी लॉक है। अगर हम इसको ऊपर से दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा, अगर हम इसको साइड से दबाएंगे तो भी ये नहीं चलेगा। जब तक हम इसके ट्रिगर के सेंटर पर इसको प्रेशर नहीं देंगे और इसका जो लॉक डिसेबल नहीं करेंगे तब तक ये पिस्टल जो है फायर नहीं होगा। और यही एक सेफ्टी फीचर के साथ इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एक हमें ड्रॉप डाउन सेफ्टी भी मिलती है। तो अगर ये पिस्टल लोडेड है और इसकी जो वन राउंड जो है इसके चेम्बर में है ऑलरेडी, अगर जब हम कैरी कर रहे हैं तो इसका चेम्बर लोडेड है, बाई चांस हमसे ये वेपन गिर जाता है ऐसे किसी भी तरीके से, तो मोस्टली जो इंडियन मार्केट में जो इंडियन वेपन्स अवेलेबल है तो उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है बुलेट फायर हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा इस पिस्टल में ऐसी कोई भी हमें ऑप्शन नहीं दी गई है, क्योंकि यूएस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, इसका मतलब ये यहाँ पे इंडियन असेंबल हुआ है, और यूएसए मेड इन यूएसए लिखा है तो इसका मतलब ये एक यूएस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो इसकी वजह से हमें जो इसकी सेफ्टी जो ट्रिगर के ऊपर दी गई है और ड्रॉप डाउन सेफ्टी भी हमें दी गई है। तो अगर हम वेपन हमसे लोडेड है गिर भी जाता है तो इसमें से बुलेट फायर नहीं होगी। और ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं ये हमें ज़्यादातर जो कि इंडियन मार्केट से बाहर अदर कंट्रीज में जो वेपन आते हैं उन्हीं में दिखेगी, इंडियन वेपन्स में नहीं। इसका रीजन ये है कि अदर कंट्रीज में जितने भी आजकल वेपन्स आते हैं वो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, और उन सभी वेपन्स में जो सेफ्टी फीचर्स आते हैं वो सभी वेपन्स के अंदर इनबिल्ट और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाले सेफ्टी फीचर्स आते हैं। कोई भी मैनुअली ऑपरेट होने वाला या बॉडी के आउटर बॉडी पे सरफेस पे जो कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं आते हैं अदर कंट्रीज में, जितने भी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स आते हैं। और ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ही वेपन है, क्योंकि इसमें भी जितने भी सेफ्टी फीचर्स आते हैं वो सारे इनबिल्ट ही आते हैं और ऑटोमेटिक फंक्शन करने वाले आते हैं या ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाले आते हैं। और अदर कंट्रीज में ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाली सेफ्टी फीचर्स को इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स है वो ड्रॉप डाउन सेफ्टी और लोडेड सेफ्टी को 100% सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मैनुअल सेफ्टी और मैनुअली ऑपरेट होने वाली सेफ्टी फीचर्स आते हैं वो ड्रॉप डाउन सेफ्टी और जो दूसरी हमारी लोडेड सेफ्टी, इन दोनों को 100% सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए ये एक मैनुअल सेफ्टी का ड्रॉबैक है। सो इसलिए जो अदर बाहर की जो जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर जो वेपन्स आते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली काम करने वाले सेफ्टी फीचर्स के साथ। और इस पिस्टल में हमें यहाँ पे एक पेटकनी ड्रिल दी गई है, जिसकी वजह से जो हमें हेल्प करती है एक्स्ट्रा लेजर्स वगैरह या लाइट्स वगैरह जो है सेसिस जो इसके साथ पिस्टल में हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, उन्हें ईजिली यहाँ पे लगाने के लिए जो ये पेटकनी ड्रिल है उन चीज़ों को ईजिली यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी अगर एसेसरी लाइट वगैरह डॉट्स वगैरह लगानी है तो वो बाकी पिस्टल में हमें ये ड्रिल नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमें उन्हें जो पिस्टल पर सपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन हमें यहाँ पे पेटकनी ड्रिल दी गई है, जिसकी वजह से हमें वाइट लाइट और रेड डॉट साइड्स वगैरह जो है इजीली यहाँ पे सपोर्ट कर जाती हैं।
तो और ये जो पिस्टल का जो इसका ग्रिपिंग टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। ये जो ग्रिपिंग है हमें काफ़ी टेक्सचर जो है हमें ग्रिपिंग पोजीशन या ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी देती है। अगर हमारे हाथ में स्वेटिंग वगैरह भी हो जाती है उसके बाद भी जो ये ग्रिप की पोजीशंस वगैरह है वो ईज़िली मूव नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे जो एमिंग पोजीशंस वगैरह हैं वो उनमें हमें डिसबैलेंस या फिर पिस्टल जो है हमारे हैंड से लूज़ नहीं होता। तो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ में हमें पिस्टल के ये फ्रेम के ऊपर यहाँ पे प्रेशर थम्स दिए गए हैं, जिसकी वजह डिप्रेशंस यहाँ पे हम अपने हैंड की जो थम्स वगैरह हैं उन्हें रेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसकी जो MRP है वो है 2,47,488। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस थी इस पिस्टल के बारे में। तो ये पिस्टल काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लोडेड आता है, जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया। और ये जो पिस्टल है मेरे हिसाब से 32 के सेगमेंट में इंडियन मार्केट में अब तक का ये सबसे बेस्ट पिस्टल है। और मेरे बताने से इसकी जो सेल्स का रिकॉर्ड है वही प्रूव कर रहा है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट पिस्टल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय में इस पिस्टल ने बहुत ही अच्छी सेल निकाल दी है और बहुत ही लेस टाइम में इस पिस्टल के काफ़ी हद तक जो स्टॉक है वो क्लियर आउट हो चुका है। मेन बात यह है कि अभी इस पिस्टल की सिर्फ लिमिटेड पीसेस ही हैं जो फैक्ट्री में अवेलेबल हैं, वो भी कुछ ही टाइम में निकल जाएंगे, क्योंकि उनके भी ऑलमोस्ट 50% बुकिंग जो है हो चुकी है। सो जिनको भी इस पिस्टल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसकी बुकिंग चाहिए या इस पिस्टल को लेने में इंटरेस्टेड हूँ तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।